بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صم بكم عمي فهم لا يرجعون. شروع اللہ کے نام سے کرتا ہوں جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. بہرے گونگے اندھے ہیں بس وہ نہیں لوٹتے. او کصیب من السماء فیہ ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين. یا آسمانی برسات کی طرح جس میں اندھیریاں اور گرج اور بجلی ہو، موت سے ڈر کر کراکے کی وجہ سے اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں ڈال لیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کافروں کو گھیرنے والا ہے. یکاد البرق یخطف ابصارهم كلما اضاء لهم مشوا فيه وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. قریب ہے کہ بجلی ان کی آنکھیں اچک لے جائے جب ان کے لیے روشنی کرتی ہے جو اس میں چلتے پھرتے ہیں، اور جب ان پر اندھیرا کرتی ہے تو کھڑے ہو جاتے ہیں. اور اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو ان کے کانوں اور آنکھوں کو بیکار کر دے. یقیناً اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. خوش آمدید. گڈ مارننگ. میں آپ کے ساتھ محمد شہباز. نہیں ہے صبح، نیا دن، نیا عزم، نیا حوصلہ، نئی خبریں ہیں. اور کیا ہے خاص؟ سب پر ہوگی بات. ہر روز ہم اپنے دن کا آغاز اچھی باتیں اور اچھے کاموں سے کرتے ہیں، تو آپ نے بھی اپنے دن کا آغاز قرآن کریم کی تلاوت اور نماز فرض سے یقیناً کیا ہوگا. ہم اپنے دن کا آغاز نیکی کے ساتھ کرتے ہیں تو ہمارا دن اچھا گزرتا ہے. اس لیے ہم نے بھی آپ کے لیے اس نئی صبح کا آغاز قرآن اور کچھ اچھی باتوں کے ساتھ شروع کرتے ہیں تاکہ ہمارا اور آپ کا دن اچھا گزرے. تو آج کی اچھی باتیں یہ ہیں کہ بڑا وہ نہیں ہوتا جو عمر اور مرتبے میں بڑا ہوتا ہے، بڑا وہ ہے جو معافی مانگے اور معاف کرنے کا وصف رکھتا ہو. اللہ تعالیٰ کی صفات میں سے ایک صفت عفو کا بھی ہے، یعنی مجرم، خطا کار اور سزا و عذاب کے مستحق کو معاف کرنے والا اور اس کی نافرمانی، خطاؤں اور گناہوں سے درگزر کرنے والا. جرم، غلطی اور نافرمانی کے باوجود سخت برتاؤ کے بجائے نرمی اور محبت سے پیش آنے والا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، معاف کرنے والے کی اللہ تعالیٰ عزت بڑھا دیتے ہیں. حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ممبر پر تشریف فرما ہو کر فرمایا، تم مخلوق پر رحم کرو، اللہ تم پر رحم فرمائے گا، اور تم لوگوں کو معاف کرو، اللہ تمہیں معاف کرے گا. محض ارادہ نہیں بلکہ فیصلہ کرے کہ ہم سب ایسی زندگی گزاریں گے جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند ہے، اور ہم ایک دوسرے کو معاف کرنے والے بھی بنیں گے. 23 جنوری کا دن بھارت اور دنیا کی تاریخ میں اہمیت کا حامل ہے. اسی دن نیتا جی سبھاش چندر بوس کی پیدائش ہوئی تھی. ملک کی تحریک آزادی کے تاریخ میں بوس کا نام سنہرے حروف میں درج ہے. اسی دن مہاراشٹر کی سیاست کے ایک بڑی لیڈر بال ٹھاکرے کی بھی پیدائش ہوئی تھی. نیتا جی سبھاش چندر بوس کا نام جنہوں نے خون کے بدلے آزادی دلانے کا وعدہ کیا تھا، ہندوستان کی جدوجہد آزادی کے تاریخ میں سنہرے حروف سے لکھا جاتا ہے. 23 جنوری 1897 کو کٹک
ओडिशा के एक बंगाली खानदान में पैदा हुए थे। बॉस हर कीमत पर अपने मुल्क की आज़ादी चाहते थे। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी मुल्क के लिए वक्फ कर दी और आखिरी सांस तक मुल्क के आज़ादी के लिए लड़ते रहे। नेताजी को मुल्क के उन बुनियाद परस्त नौजवानों का चेहरा समझा जाता था जो मादरे हिंद को हर कीमत पर आज़ादी के बेड़ियों से आज़ाद करने के लिए बेचैन रहते थे। वो कांग्रेस के सदर भी रहे। मुल्क की आज़ादी की तारीख के अजीम हीरो बॉस की जिंदगी और मौत भले ही पुरअसरार समझी गई हो, लेकिन उनकी हुब्बुल वतनी हमेशा नाकाबिले सवाल और मिसाल रहती है। जनवरी 1944 में सुभाष बाबू ने अपने हेडक्वार्टर सिंगापुर से रंगून मुंतकिल कर दिया, जहां से हिंदुस्तान के सरहद पर हमला करने की मंसूबाबंदी शुरू कर दी गई और 4 फरवरी 1944 को बर्मा की सरहद से पहली मर्तबा हिंदुस्तान पर हमला किया गया। तकरीबन 43 दिन की जंग के बाद 18 मार्च 1944 को हिंदुस्तान के सूबे आसाम के कई मकामात पर आज़ादी हिंद फौज का कब्जा हो गया और 19 मार्च 1944 को हिंदुस्तान की सरजमीन पर पहली मर्तबा आज़ाद हिंदुस्तान का परचम लहराया गया। मगर बदकिस्मती से ये वो ज़माना था जब दूसरे आलमी जंग का दौरान बहरे अल-काहिल में जापानियों की पसपाई का आगाज़ हुआ और उनकी इस शिकस्त ने उन्हें आज़ाद हिंद फौज की इमदाद से हाथ उठा लेने पर मजबूर कर दिया गया। 4 माह बाद आज़ाद हिंद फौज को भी पसपा होना पड़ा और उनकी मफ्तूहा इलाकों पर दोबारा मकामी हिंदुस्तानी फौज का कब्जा हो गया। आज़ादी हिंद फौज बर्र सगीर के जिद्दोजहद आज़ादी का एक दरख्शां बाब है, मगर इस बाब का अंजाम बड़ा अलमनाक हुआ। इसलिए हम और हमारी टीम के जानिब से हिंदुस्तान के इस मर्द मुजाहिद को सलाम पेश करते हैं। भारत और दुनिया की तारीख में 23 जनवरी की तारीख में दर्ज कई अहम वाक़यात हैं, जिनकी मैं आपको तफसील बताते हैं कि 1897 में सुभाष चंद्र बोस की पैदाइश हुई, जिन्होंने हिंदुस्तान में बरतानवी राज के खिलाफ इनकलाब का बिगुल बजाया। 1920 में हवाई नकल हमल और हवाई मील सर्विस का आगाज़ हुआ। 1926 बाल ठाकरे की पैदाइश, जो महाराष्ट्र के सियासत के नब्ज़ को समझते थे। उन्होंने इलाकाई पार्टी शिवसेना बनाई और इक़्तिदार के राहदारियों तक रसाई हासिल की। 1965 दुर्गापुर स्टील प्लांट ने काम करना शुरू कर दिया। 1971 सिंगापुर में दौलत मुश्तरका के ममालिक कॉन्फ्रेंस में दौलत मुश्तरका के नज़रियात पर तैयार किए जाने वाले एलानिया में तब्दीलियाँ की गई, जिससे बरतानिया की जानिब से जनूबी अफ्रीका को हथियारों की फ़रोख्त का रास्ता साफ हो गया। 1973 अमरीकी सदर रिचर्ड निक्सन की तरफ से वियतनाम अमन मुआहदा का ऐलान और इसके साथ ही अमरीका के तरफ से लड़ी जाने वाली तवील तरीन जंग का खात्मा हुआ। जंग बंदी का इतलाक 27 जनवरी से हुआ। 1977 जनता पार्टी इंदिरा गांधी की क़यादत में कांग्रेस के खिलाफ आम इंतखाबात लड़ने के लिए कई सियासी जमातों को जम करके कायम की गई। 1979 तजाकिस्तान में एक ताकतवर ज़लज़ले में सैकड़ों अफराद हलाक हो गए। 1997 में मैडलिन अल्ब्राइट ने सदर बिल क्लिंटन की हुकूमत में वज़ीर ख़ारजा का ओहदा संभाला। वो अमेरिका की पहली खातून वज़ीर ख़ारजा थी। 2002 में अमेरिकी सहाफ़ी डेनियल पेरल को कराची पाकिस्तान से अगवा किया गया, बाद में फिर उसे कत्ल कर दिया गया। 2009 23 जनवरी फिल्मों और टेलीविज़न प्रोग्रामों में सिगरेट नोशी के मनाजिर की नुमाइश पर पाबंदी ख़त्म कर दी गई। 2020 बरतानिया की मलिका एलिज़ाबेथ दोम ने बरतानवी हुकूमत के ब्रेक्ज़िट कानून की मंजूरी दे दी। मौसम की बात की जाए तो आज शहर हैदराबाद में सरकारी एदाद शुमार के मुताबिक हैदराबाद में आज मौसम मुतदिल रहेगा। पारा की सतह दिन भर 18 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की तवक्का है। कम से कम दर्जे हरारत 18 डिग्री सेंटीग्रेड तक गिरने का इम्कान है, जबकि ज़्यादा से ज़्यादा दर्जे हरारत 28 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है। इस दौरान हवा की रफ्तार तकरीबन 5.62 रहेगी। ये 9.89 की झोंके की रफ्तार के साथ 124 डिग्री के गिर्द घूमेगा। सूरज सुबह आज 6:49 पर तुलू हुई और आज शाम 6:05 पर गुरूब होगा। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी अंडमान और निकोबार जज़ाइर के 21 सबसे बड़े बेनाम जजीरों को 21 परमवीर चक्कर जीतने वालों के नामों के मंसूब करने के लिए मुनक्किदा प्रोग्राम में शिरकत करेंगे, जो आज यानी 23 जनवरी को सुबह 11 बजे अक्रम दिवस पर वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए लेंगे। प्रोग्राम के दौरान वज़ीर आज़म नेताजी सुभाष चंद्र बोस जजीरे पर बनाई जाने वाली नेताजी के लिए वक्फ कौमी यादगार के मॉडल की भी नकाब कुशाई करेंगे। ये इत्तला वज़ीर आज़म के दफ्तर से मौसूल हुई है।
एडलमन ट्रस्ट बैरोमीटर जो 2 दहाइयों से ज़्यादा अरसे से हज़ारों लोगों की मुआशरती रवैयों का जायज़ा ले रहा है कि एक ताज़ा रिपोर्ट में इंकशाफ किया गया है कि दुनिया के बाज़ तरक्की याफ्ता और आला इक़्तिदार के हामिल समझे जाने वाले ममालिक के अवाम में मायूसी उरूज पर है। मिसाल के तौर पर अमरीका, बरतानिया, जर्मनी और जापान जैसे मजबूत मुआशियतों में मज़कूरा बैरोमीटर के जायज़े से मज़ीद इस बात की तस्दीक भी हुई है कि बेहतर मुस्तक़बिल की उम्मीद और माशरती इस्तेहकाम के अदम मौजूदगी ऐसे मुआशरों को किस तरह तोड़ रही है। महंगाई और वबाई अमराज के असरात के बावजूद ज़्यादा आमदनी वाले घराने अब भी बड़े पैमाने पर इदारों पर भरोसा करते हैं, लेकिन कम आमदनी वाले ग्रुपों में मुआशरती बेगानगी बढ़ती जा रही है। मुजाहिरीन पर हुकूमत के वहशियाना क्रैकडाउन पर 37 ईरानी ओहदेदारों और तंजीमों पर नई पाबंदी आयद करने के लिए यूरोपीय ममालिक में बहस के दौरान हफ्ते के रोज़ ईरान की करेंसी अमरीकी डॉलर के मुकाबले में रिकॉर्ड कम तरीन सतह पर आ गई। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक यूरोपीय यूनियन और तेहरान के दरमियान ताल्लुकात हालिया महीनों में ख़राब हुए हैं क्योंकि जौहरी मुज़ाकरात के बहाली की कोशिशें ताअत्तुल का शिकार हैं। ईरान ने मुतअद्दिद यूरोपीय शहरियों को हिरासत में ले लिया है और ब्लॉक मुजाहिरीन के साथ पुरतशद्दुद सलूक और फांसियों का इस्तेमाल पर सख्त तनकीद का निशाना बना है। यूरोपीय यूनियन ब्लॉक के वज़रा ख़ारजा पीर को ब्रसेल्स में पहले से तयशुदा इजलास में तेहरान के मुजाहिरीन पर जबरन खिलाफ पाबंदियों के चौथे पैकेज को अपनाने पर रजामंद होने वाले हैं। लॉस एंजल्स काउंटी शेरिफ डिपार्टमेंट के कैप्टन एंड्रयू मेयर ने जानकारी देते हुए बताया कि अमरीकी रियासत कैलिफोर्निया के शहर मोंटेरी पार्क में एक इज्तिमाई फायरिंग के नतीजे में कम अज़ कम 10 अफराद हलाक और दीगर 10 जख्मी हो गए हैं। गैर खबर रसा एजेंसी ने इतला दी है कि हफ्ते की रात 10 बजे करीब एक शख्स ने मकामी डांस स्टूडियो में फायरिंग की। मुबैना तौर पर यह वाक़या शहर के मरकजी इलाके के करीब पेश आया जहाँ हर साल मोंटेरी पार्क कमरी साल का मेला मुनक़्क़िद किया जाता है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने इतवार को रियासती पुलिस फोर्स और मरकजी एजेंसियों के दरमियान उनकी सलाहियतों का भरपूर फ़ायदा उठाते हुए ताउन बढ़ाने की तजवीज़ पेश की और टेक्नोलॉजी को हल करने अपनाने के साथ साथ पैदल गश्त जैसे रवायती पुलिसिंग मैकेनिज़्म को फ़रोग़ देने पर जोर दिया। डायरेक्टर जनरल इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस की 57वें ऑल इंडिया कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म ने फरसुदा फौजदारी क़वानीन को मनसूख करने, रियासतों में पुलिस तंजीमों के लिए मयारात बनाने की तजवीज़ दी। ये टीम जो हवाबाजी की हिफाजत के लिए मुकामी हादसे की जांच के लिए नेपाल का दौरा करने का मनसूबाबंदी कर रही थी, अपने दौरे को मुलतवी कर दिया है। काठमांडू नेपाल हवाई जहाज़ हादसे में हलाक होने वाले 4 हिंदुस्तानियों की लाशें हासिल करने के लिए उनके रिश्तेदार पिछले 3 दिनों से अस्पताल में इंतजार कर रहे हैं। यात्री एयरलाइंस का एक हवाई जहाज़ पिछले इतवार के रोज़ रिसोर्ट शहर पोखरा में लैंडिंग से चंद मिनट कबल गोगरी नदी में हादसे का शिकार होने की वजह से हवाई जहाज़ में सवार 72 लोगों की मौत हो गई थी, जिसकी लाशें उनके वर्षे को हवाले करने का मंगल के रोज़ से नेपाल अथॉरिटीज़ ने आगाज़ किया था। हवाई जहाज़ में सवार मुसाफिरीन में 53 नेपाली और 15 गैर मुल्की बशमोल 5 हिंदुस्तानी और 4 हवाई जहाज़ अमले के मेंबर्स मौजूद थे। 5 हिंदुस्तानियों में तमाम का ताल्लुक उत्तर प्रदेश से है, जिसकी शनाख्त 25 साला अभिषेक कुशवाहा, 22 साला विशाल शर्मा, 27 साला अनिल कुमार, 35 साला सोनू जायसवाल और संजय जायसवाल के तौर पर हुई है। तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी टीपीसीसी के सदर रेवंत रेड्डी ने कहा है कि कांग्रेस पार्टी पामुलू में 14 में से 14 सीटें जीत लेगी। इतवार को यहां बिजनीपल्ली में मुनक्किदा दलिता गिरिजना आत्मा गौरवा सभा से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि पालामुरू में 14 में से 14 सीटें जीतना और रियासत में कांग्रेस का झंडा बुलंद करना मेरी जिम्मेदारी है। ये मेरी जिम्मेदारी है कि पार्टी जिसको भी मौका दे उसे अपने कंधों पर उठाकर कुर्सी पर बैठाऊं। तमाम रहनुमा मिलकर काम करेंगे। दलित, कबायली, आदिवासियों और कमज़ोर तबकात को इकट्ठा होना चाहिए और कांग्रेस को जीतना चाहिए। शहरी और दही इलाकों में हमगिर तरक्की के लिए एक गैर मुनासिब मनसूबाबंदी, तरक्की के लिए फंड्स का इजरा सिर्फ सड़कों, पानी फराहमी और सफाई सुथराई तक महदूद है। ख़ास तौर पर ज़िला रंगारेड्डी में लाइब्रेरियों को फ़रोग़ देने जैसे इक़दामात के लिए किसी भी अमले नुक़्ता नज़र के बगैर हर म्यूनसिपलिटी को ये मैंडेट हासिल है कि वो प्रॉपर्टी टैक्स का कुल रेवेन्यू की वसूली का 8% लाइब्रेरी सेस के तौर पर ज़िला गंदालिया
समस्था को अदा करे। ताहम ये मालूम हुआ है कि ज़िला गंधालिया समस्था को न तो मुस्तक़बिल बुनियादों पर काफ़ी फंड जारी किए गए हैं और न ही लाइब्रेरियों की नई इमारतों की तामीर के लिए जो तजावीज़ पेश की गई है उन्हें 2018 से हुकूमत की तरफ से मंजूरी मिल रही है। रंगारेड्डी ज़िले के बाज़ मकामात पर बूढ़ों पर हमले मुस्तकिल बुनियादों पर जारी हैं। बाज़ अपने बूढ़े वालिदैन को सहारा देने और उनकी देखभाल करने के बजाय उन्हें अजियत दे रहे हैं। रंगारेड्डी ज़िले में 84,496 ऐसे बुजुर्ग हैं जिनकी उम्र 60 साल से ज़ायद है और उन्हें हुकूमत की तरफ से माहाना 2016 रुपये पेंशन मिल रही है। इल्ज़ाम है कि उनके बेटे, बहू और पोते उनसे ज़बरदस्ती ये रकम ले रहे हैं और बेबस वालिदैन बच्चों को खो जाने के खौफ से खामोश है। बूढ़े वालिदैन को हरासा करने का सिलसिला जारी रहता है। इससे कतई नज़र वो कि गरीब हो या अमीर, लेकिन ये माजी के मालदार ख़ानदानों में ज़्यादा नज़र आता है। कहा जाता है कि आम औकात में 28.6% बूढ़े अपने बच्चों की तरफ से नज़रअंदाज होते हैं और कोविड के बाद इस तादाद में 60% इजाफा हुआ है। बिस्तर पर पड़े बुजुर्गों के लिए ऐसे मुतासिरीन की तादाद में इजाफा हुआ है और हुकूमत बुजुर्ग फलाई मरकज़ के ज़ेर एहतमाम 14,567 कॉल सेंटर चला रही हैं जिससे शिकायतें ली जा रही है। शहर के बशीरबाग में कैपिटल मंडी का रियासती वज़ीर टी हरीश राव और मोहम्मद महमूद अली ने इफ्तिताह किया, जहां मंदी, बिरयानी और चाइनीज़ फास्ट फूड देगर आइटम्स वहां दस्तियाब हैं। इस इफ्तिताही तकरीब के मौके पर रुकन असम्बली व चारमीनार मुमताज़ अहमद खान और तेलंगाना अक़लियती मालियाती कॉरपोरेशन सदर नशीन मोहम्मद इम्तियाज़ इसहाक़ के अलावा देगर भी मौजूद थे। वी आर फ्रॉम नागरा ग्रुप ऑफ रेस्टोरेंट्स। हम लोग एक और रेस्टोरेंट हैदरगुड़ा पर अल्हम्दुलिल्लाह महमूद अली साहब, होम मिनिस्टर और हरीश राव साहब फाइनेंस मिनिस्टर की से इफ्तिदा अमल में आ चुका है। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर आप फाइन डाइन मंदी चाइनीज़ हर कुजीन आके खा सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हर चीज़ से We are the first one to start the culture of selling biryani in Hyderabad. We were the first one who started selling biryani commercially. We have been serving Hyderabad with Mughlai food since 1957. We are from Nagra Group and we've been doing this since forever. Alhamdulillah, आज आपको बेहतरीन इंटीरियर के साथ फाइन डाइन मंदी और मल्टी कुजीन खा सकते हैं with beautiful interiors here. आप सब देख सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आप सब आइए इंशाल्लाह। आज हैदरगुड़ा ओल्ड एमएलए क्वार्टर्स के सामने। थैंक यू। ये हमारा थर्ड ब्रांच है। पहले नागरा थी, यहाँ पे नागरा ही थी, फिर हम लोग वापस कैपिटल के नाम से स्टार्ट करें। पहले छोटी थी, अब बड़ा एक्सपेंशन करके स्टार्ट करें और यहाँ पे मंदी स्टार्ट करें, फिर फाइन डाइन अलग, फैमिली के लिए, मंदी के लिए अलग, और फिर यहाँ पर ऊपर जनरल सेक्शन टू कैटर द मास। इंशाल्लाह आप सब आके देख सकते हैं। महाराष्ट्र समाजवादी पार्टी के रियासती सदर व रुकन असम्बली अबू आसिम आज़मी ने औरंगजेब की हिमायत बयान दिया था, जिसके बाद उन्हें जान से मारने की धमकियां मौसूल हुई है। नामालूम शख्स ने आज उन्हें फ़ोन किया और फ़ोन पर उनके पर्सनल असिस्टेंट ने उठाया। फ़ोन करने वाले ने मुबैना तौर पर पहले गाली गलौज की, फिर अबू आसिम आज़मी को जान से मारने की धमकी दी। अबू आसिम आज़मी की शिकायत पर इस मामले में मुंबई पुलिस स्टेशन में FIR दर्ज कर दी गई है। इस बारे में मुंबई पुलिस का कहना है कि समाजवादी पार्टी के महाराष्ट्र के सदर अबू आसिम आज़मी को औरंगजेब की हिमायत करने पर फ़ोन पर जान से मारने की धमकियां मौसूल हुई है। फोन कॉल करने वाले शख्स के खिलाफ पुलिस स्टेशन में FIR दर्ज कर दी गई है। फिलहाल मजीद तफ्तीश जारी है। तेलंगाना बीजेपी सदर बंडी संजय की छठे मरहले पर संग्राम यात्रा जल्द आगाज होगा। बंडी संजय ने अब तक यात्रा के 5 मरहलों में 57 असम्बली हलकों का अहाता कर चुकी है। शहर हैदराबाद के हकीमपेट टोली चौकी में वाक़ विराज कॉलोनी ओवैसी वाटर प्लांट के करीब गैस सिलेंडर फटने से आग लग गई। फायर ब्रिगेड आग बुझाने में कामयाब रही। हादसे छोटे गैस सिलेंडरों में गैस सिलेंडर से LPG की गैर कानूनी भराई के दौरान पेश आया, जिसकी वजह से बड़ी आग लग गई। मकामी लोगों ने फायर ब्रिगेड को इतला दी। फायर ब्रिगेड आग पर काबू पाने में कामयाब रही। गैस सिलेंडर फटने के दौरान जोरदार आवाज़ सुनी गई। अनकरीब 3 दुकानें जलकर खाकसर हो गई। अभी तक कोई जानी नुकसान की इतला नहीं मिली है। माली नुकसान का अभी तक अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता। जैसे ही
आग लगी, मकामी लोग खौफ के मारे भागने लगे। मकामी लोगों का कहना है कि वो कवायद के खिलाफ गैस सिलेंडर भर रहे थे। इस हादसे में 5 गैस सिलेंडर फट गए। पुलिस जाए वक़ुआ पर पहुंचकर तहक़ीक़ात कर रही है। शहर में हालिया दिनों में आग लगने की वाक़यात में इजाफा हो रहा है। ओ भाई नहीं सुबह यहीं पर इख्तिताम पसीद हुआ। आप अगर हमें टीवी पे देख रहे हैं तो आप हमें मेल के ज़रिए अपनी फ़ीडबैक दे सकते हैं, या आप फिर व्हाट्सएप पे भी मैसेज करके आप हमें फ़ीडबैक दे सकते हैं। आप अगर हमें सोशल मीडिया पे देख रहे हैं तो कमेंट करके अपनी राय ज़रूर दें। कल फिर होगी मुलाकात। अल्लाह हाफिज़।